Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. Students, we are doing 6th chapter, that is molecular basis of inheritance. Today we are going to study the next topic, that is RNA words. So let's start. Hello students, let's continue chapter 6, that is molecular basis of inheritance. In the previous video, students, we discussed about the nucleic acid and in detail we discussed the structure of DNA, which is deoxyribose nucleic acid and which is the main genetic material in all the living forms. Today we are going to study about RNA and different types of RNA. बच्चे RNA is ribose nucleic acid and it is also made up of many ribonucleotides which are linked with the help of phosphodiester bonds. So RNA जो है that is the genetic material in few viruses. In most of the living form DNA is the genetic material and we have already discussed it, we have proved it experimentally that DNA is the genetic material. RNA is the first genetic material or it is the first molecule of heredity before the DNA came into existence. RNA is unstable but it is believed that DNA is evolved from RNA. So today we will study the structure of RNA and different types of RNA in detail. Now, discovery of RNA. In 1940, biochemists they realized that both DNA and RNA they are present in the living cells. DNA जो है बच्चे it is present in the nucleus of the cell and RNA is present both in the nucleus as well as in the cytoplasm. अमेरिकन ਕੈਮਿਸਟ थे ਨਿਹਨਬਰਗ 1927 और उस तो बाद बच्चे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ. He was credited with translating the code of life. He demonstrated that RNA could be translated into proteins. जो DNA है बच्चे DNA अपनी इंफॉर्मेशन RNA ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ RNA DNA ਤੋਂ इंफॉर्मेशन लेके आंदा है DNA ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन RNA ਨੂੰ और later on RNA जो है उस इंफॉर्मेशन ਨੂੰ ट्रांसलेट कर ਦਿੰਦਾ है for the formation of proteins. जो मैं वर्ड्स बोल रही हाँ ये ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ज़्यादा क्लीयर हो जाएंगे स्टूडेंट्स ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ प्रोटीन सिंथेसिस करांगे यानी कि ਆਪਾਂ ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों प्रोसेस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ करांगे. Okay. So what is RNA students? RNA is ribonucleic acid, right? So this is RNA's full form. It is ribonucleic acid. RNA is one of the major biological macromolecule that are essential for all known forms of life. जो RNA न्यूक्लियोटाइड्स हैं आप DNA च स्टडी किया DNA का न्यूक्लियोटाइड कितना बनया सी शुगर प्लस नाइट्रोजनस स्पेस प्लस फॉस्फेट. इसी तरह जो RNA का न्यूक्लियोटाइड है इट इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम शुगर दैट इज़ पेंटोज शुगर बट पेंटोज शुगर इज़ राइबोज हेयर. In DNA, it was deoxyribose, but here it is ribose. With carbon number 1, through 5' end, a base is attached to one position in general. जेड़ा पेंटोज शुगर है उसका जेड़ा कार्बन नंबर 1 है उसके नाल नाइट्रोजनस बेस जो है वो अटैच होंदा है. RNA जो नाइट्रोजनस बेसिस ने दे आर एडेनिन साइटोसिन गुआनिन एंड यूरासिल. ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ RNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਥਾਇਮਿਨ ਬੇਸ ਹੈ ਜੋ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ RNA ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ स्ट्रक्चर ऑफ RNA. जिस तरह आप DNA देखा RNA जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है और RNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ बैकबोन है जिवें आप DNA देखा कि हेलिकली कॉइल्ड सीगे स्ट्रैंड RNA जो है वो सिंगल स्ट्रैंड है और RNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ RNA ਦਾ बैकबोन है दैट इज़ मेड फ्रॉम शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. शुगर इज़ राइबोज शुगर एंड फॉस्फेट दे बोथ फॉर्म द बैकबोन ऑफ द RNA. नाइट्रोजनस बेसिस जो ने दे आर लिंक्ड टू द शुगर. जस्ट नाउ एक्सप्लेन टू यू कि कार्बन का जोड़ा शुगर का कार्बन नंबर 1 होंदा है उस दे नाल नाइट्रोजन बेसिस जो हैं वो लिंक्ड होंदे ने एंड दे प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन. नाइट्रोजनस बेसिस जिन्हें दे आर लिंक टू पेंटोज शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और उस दे नाल बनिया सी
ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ। आई थिंक ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਬੇਸ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਬੇਸ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਾਈਕੋਸਿਡਿਕ ਬੌਂਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3-OH ਸਾਈਡ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਸਫੋਡਾਈਸਟਰ ਬੌਂਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫਾਸਫੋਡਾਈਸਟਰ ਲਿੰਕੇਜ। ਸੋ ਟੂ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ, ਦੋ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ 3-5 ਫਾਸਫੋਡਾਈਸਟਰ ਲਿੰਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਡਾਈ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ DNA 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੇਮ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ RNA ਕੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਮਰ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਦਾ। ਰਾਈਬੋ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਈਬੋ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ। ਸੋ ਰਾਈਬੋ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਫਾਸਫੋਡਾਈਸਟਰ ਲਿੰਕੇਜ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੋ ਲਿੰਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਡਾਈ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਮਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਫ ਰਾਈਬੋ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ। ਓਕੇ, ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਸੱਚ ਗਰੁੱਪਸ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚ ਆ ਪੋਲੀਮਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਫਾਸਫੇਟ ਐਟ 5' ਐਂਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ DNA ਦੱਸਿਆ ਸੀ, DNA ਜਿਹੜੀ ਚੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ 5 to 3 ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 3 to 5 ਹੋਏਗੀ ਉਸਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ RNA ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਫਾਸਫੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਟ ਦਾ 5' ਐਂਡ ਆਫ ਰਾਈਬੋਸ ਸ਼ੂਗਰ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5' ਐਂਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਂਡ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 5' ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 3' ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3' ਐਂਡ ਆਫ ਪੋਲੀਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਚੇਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 5' ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 3। RNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ OH ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਆਕਸੀਰਾਈਬੋਜ਼ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ DNA ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ H ਸੀਗਾ, whereas in the ribose or in the case of RNA there is OH group present. Okay, ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ RNA ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੈਂਟੋਸ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਬੇਸ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕੇਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗਲਾਈਕੋਸਾਈਡਿਕ ਬੌਂਡ, ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇੱਥੇ OH ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਸਫੇਟ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਫਾਸਫੋਡਾਈਸਟਰ ਲਿੰਕੇਜ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ DNA ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ RNA ਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਮੈਨੀ ਰਾਈਬੋ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ। Now, so this in order to make the structure of RNA very clear, I have taken this diagram. So you can see this is a pentose sugar, carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, 4 and 5 carbons. Carbon number 1 te nitrogenous base lage, base can be adenine, guanine, cytosine and uracil in case of RNA. Then carbon number 2 ਤੇ OH group ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ and carbon number 5 ਤੇ we have phosphate group. तो अब पूरा unit ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ nucleotide. Okay. So this is single stranded RNA. You can see the backbone of the RNA which is made from the sugar and the phosphate. So this is the backbone, students, and you can see the nitrogenous bases which are projecting from the main backbone of sugar and phosphate. So different bases हैं, cytosine जो कि monocyclic है, guanine dicyclic है, adenine dicyclic है and uracil is monocyclic nitrogenous base. Okay. So I think बच्चों structure of RNA is very clear to you. Now we are going to study 3 different types of RNA. There are 3 types of RNA. First is known as messenger RNA or mRNA. It carries the information from the DNA to ribosome. Just now I explained you that DNA जो है बच्चे, DNA कित्थे present है? DNA is present inside the nucleus. और DNA ਜਿਹੜਾ ਹੈ DNA ਤੋਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? RNA ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ RNA? ਮੈਸੇਂਜਰ RNA. As the name indicates, it is carrying the message. Message ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? From the DNA. So it carries the information from the DNA to the ribosomes. Ribosomes ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ribosomes they are the protein factories. तो ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ DNA ਕੋਲ ਹੈ। DNA ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ DNA ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਟਾਈਪ ਆਫ RNA is messenger RNA.
Then second we have transfer RNA, also known as tRNA, and third is ribosomal RNA, that is known as rRNA. So let us study the structure of 3 different types of RNA in detail. Okay students, so this is the first type of RNA which is known as messenger RNA. It is the RNA which carries the message from DNA to the site of protein synthesis. बच्चे protein synthesis कित्थे हुंदा है? Protein synthesis cytoplasm च हुंदी है. DNA कित्थे present है? DNA is present inside the nucleus. So DNA अपनी information DNA न्यूक्लियस तो या तो DNA न्यूक्लियस तो बाहर साइटोप्लाज्म च आए फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, या जो भी सानू मटीरियल चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस वास्ते वो सारा कित्थे शिफ्ट होवे? न्यूक्लियस के अंदर शिफ्ट होवे. बट न्यूक्लियस जिहड़ा है उसदे कोल इन्ना स्पेस नहीं है कि उत्थे सारा एक प्रोसेस जो है वो हो सके. सो DNA की करता है? DNA जिहड़ा मैसेंजर RNA है, इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज. इट इज़ जस्ट 5% ऑफ टोटल RNA. Messenger RNA is just 5% or 5 to 10% of total RNA है messenger RNA, and it is small in size. और messenger RNA न्यूक्लियस के अंदर जाके DNA तो ट्रांसक्राइब होता है. इट मीन्स DNA तो messenger RNA बनता है और DNA अपनी सारी इंफॉर्मेशन किसनू पास करता है? messenger RNA नू पास करता है. और ये जी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है एक कोडॉन की फॉर्म्स जाती है. ट्रिपलेट कोडॉन्स 3 कोड्स होंगे ने जिहड़े कि 1 2 3 कोड्स जो ने वो एक अमाइनो एसिड नू सिग्नीफाई करते हैं. सो एक अमाइनो एसिड नू रिप्रेजेंट करने वास्ते अपने को 3 अल्फाबैट्स ने जो कि एक कोडोन बनाते हैं. ठीक है. सो इत्थे साडा मैसेंजर RNA का स्ट्रक्चर है. अगर तुसी मैसेंजर RNA के स्ट्रक्चर नू ध्यान नाल देखो बच्चे, इहदे एंड ते एक इहदा 5 प्राइम एंड है, दूसरा इहदा 3 प्राइम एंड है. राइट. सो इस दे विच की हैगा कि जो इसका 5 प्राइम एंड है इस दे कोल कैप हुंदा है. दैट इज़ द कैप रीजन हुंदा है जो कि मिथाइल गुआनिन तो बनती है एक कैप. सो कैप जो है ये एक मैसेंजर RNA नू प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम दी हाइड्रोलिटिक एंजाइम. इसी तरह जेड़े अगर तुसी इस पासे आंदे हो यदि राइट हैंड साइड ते जो कि 3 प्राइम एंड है, इत्थे स्टूडेंट्स टेल हुंदी है. इसनू असी पॉली ए टेल कहने हैं जो कि पॉली एडेनिन तो बनता है. ये भी जिहड़ा टेल है ये भी मैसेंजर RNA नू प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी हाइड्रोलिटिक एंजाइम. नाउ जिहड़ा मैसेंजर RNA है उस दे विच जिहड़ा ग्रीन पोर्शन लग दिख रहा है तुहानू, ये कोडिंग सीक्वेंस है जिहदे कोल एक्चुअल कोड्स ने फॉर जो कि एक्चुअली ट्रांसक्राइब होके आए ने फ्रॉम द DNA. राइट. सो ये जिहड़ा मैसेंजर RNA है इस दी कैप तो बाद एक येलो पोर्शन इत्थे दिख रहा है, इनू असी UTR कहने हैं. और एक इत्थे पर्पल पोर्शन दिख रहा है, इसनू भी असी UTR कहने हैं. UTR का मतलब हुंदा है अनट्रांसक्राइब्ड रीजन. अनट्रांसक्राइब्ड रीजन. अनट्रांसक्राइब्ड रीजन जो हुंदा है ये बच्चे ये सानू अगे जिहड़ी ट्रांसक्रिप्शन है इस दे वास्ते सानू बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इहदा, आपां स्लोली डिस्कस करांगे. जिहड़ा UTR है मैसेंजर RNA च एक तां ये जिहड़ा स्टार्ट पॉइंट है उस तो पहला हुंदा है UTR रीजन, ये छोटा है. लेकिन जिहड़ा राइट हैंड साइड ते UTR है 3 प्राइम एंड ते वो थोड़ा लंबा पोर्शन है. और ये जिहड़ा पोर्शन है ये जिहड़ा स्टॉप कोडॉन तो बाद होएगा. इत्थे स्टॉप कोडॉन आएगा जिथे कि प्रोसेस जिहड़ा हैगा वो स्टॉप हो जाता है. हुणे मैं तुहानू एक्सप्लेन करांगी. सो इत्थे 2 UTR पोर्शन ने जिन्हां नू कि असीं अनट्रांसक्राइब पोर्शनस बोलते हैं. सो लेट्स स्टडी द स्ट्रक्चर इन डिटेल. ओके. सो बच्चे मैसेंजर RNA की है सब तो पहला सिंगल स्टैंडर्ड है. इत्थे सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनया होया है. सो इत्थे जिहड़ा 5 प्राइम एंड है उहदे कोल कैप हैगी है जो कि 7 मिथाइल गुआनोसिन तो बनी है. स्पैलिंग बच्चे ठीक कर लेना, GUA है. और इट इज़ एबसेंट इन प्रोकैरियोटिक मैसेंजर RNA. अगर तुसी कैप तो देखते हो, कैप तो बाद नॉन कोडिंग रीजन है जिहड़ा मैं तुहानू ये वाला रीजन बना के दिखाया येलो पोर्शन, ये नॉन कोडिंग रीजन है. इसनू असी लीडर सीक्वेंस भी कहने हैं. ठीक है. और इस तो बाद जिहड़ा ग्रीन पोर्शन है उहदे स्टार्टिंग दे विच इत्थे एक स्टार्टिंग कोडॉन हुंदा है. स्टार्टिंग कोडॉन हुंदा है AUG. मीनस जदों AUG आएगा ਤਾਂ ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होएगा. मैसेंजर RNA जो सिंथेसाइज होना है फ्रॉम DNA वो बनना शुरू करेगा. एक सिग्नल है. अगर AUG कोड आएगा तो इसनू असी स्टार्ट कोडॉन बोलते हैं. उस तो बाद सारा ट्रांसक्रिप्शन हो गया, मैसेंजर RNA बन गया. उस तो बाद इसथे एक स्टॉप कोडॉन है.
ਸਟਾਪ ਕੋਡਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁਣ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਡਸ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਟੇਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੋਲੀ ਐਡੇਨਿਨ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ UTRs ਦੱਸਤੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ UTR ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ UTR ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ AUG ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੋਡਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੋਡਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ UAG ਹੈ ਔਰ UGA ਹੈ ਐਂਡ UAG, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਕੋਡਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੋਡਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੋਡਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ AUG, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਕੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UTR ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੋਡਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਲ ਹੈ, ਟੇਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ UTR ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ UAG ਹੈ ਜਾਂ UGA ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕੋਡਨਸ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ, ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ RNA ਹੈ। ट्रांसफ़र RNA जो है दैट इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ RNA एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ टोटल RNA होंदा है। ट्रांसफ़र RNA स्मॉलर ऑफ द 3 मेजर स्पीशीज़ ऑफ RNA 74 तो 95 न्यूक्लियोटाइड्स तो मिलके ये बनता है, ठीक है। और इस दे विच ये की करता है, ट्रांसफ़र करता है अमाइनो एसिड्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਕਿੱਥੇ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ RNA ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨਗੇ, ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਤੋਂ ਬਣਨਗੇ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ RNA ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥੇਸਾइजिंग ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਿਊਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਿਊਬਲ RNA ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਡੈਪਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਅਡੈਪਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫॉर द ट्रांसलेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA का जो सीक्वेंस है उसनों अगे ट्रांसलेट करता है और अमाइनो एसिड पिक करके लिया, स्पेसिफिक ट्रांसफर RNA स्पेसिफिक अमाइनो एसिड नू पिक करता है, राइट। सो 20 स्पीसीज़ ऑफ डिफरेंट ट्रांसफर RNAs ने, और साडे कोल 20 अमाइनो एसिड्स ने, उहदे वास्ते साडे कोल डिफरेंट 20 ट्रांसफर्स RNA है। ट्रांसफर RNA का स्ट्रक्चर समझने वास्ते, तो ट्रांसफर RNA का प्राइमरी सिंपल सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, बट लेटर ऑन वो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है बीच, और वो एक क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और उसके डिफरेंट टाइप दी आर्म्स और लूप्स ने। आपां हुणे डायग्राम दे नाल इहनूं स्टडी करन दी कोशिश करांगे। एक असेप्टर आर्म है, देन एंटीकोडोन है, एक DHU आर्म हुंदी है, एक TC आर्म है, एक एक्स्ट्रा आर्म है। सो वी विल स्टडी वन आर्म, सारे आर्म्स नू वन बाय वन वी विल स्टडी इट इन द डिटेल। सो फस्ट ऑफ ऑल असेप्टर आर्म, देखो इत्थे मैं एक स्ट्रक्चर बनाया बच्चे। सब तो पहला आ जिहड़ी आर्म है इसनू असी असेप्टर आर्म बोलते हाँ। लेट अस सी असेप्टर आर्म की करेगी, सब तो पहली गल 3 एंड ते हुंदी है, 3 प्राइम एंड ते हुंदी है, इहदे कोल 7 बेस पेयर्स हुंदे हैं, ठीक है। और इत्थे OH ग्रुप हुंदा है, OH टर्मिनल है एडेनिन का, जो कि बाइंड करता है विद द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड। सो ट्रांसफर RNA ने किनू ट्रांसफर करना है, अमाइनो एसिड्स नू ट्रांसफर करना है। सो स्टूडेंट्स ये जो 3 इत्थे देखो एक सीक्वेंस है CCA, आ जी CCA सीक्वेंस है, इत्थे की हुंदा है OH ग्रुप हुंदा है लास्ट दे विच, और इस OH ग्रुप दे नाल जिहड़ा की बाइंड करता है, कार्बोक्सिल ग्रुप बाइंड करता है ऑफ द अमाइनो एसिड्स। तो जदों अमाइनो एसिड ट्रांसफर RNA ने पिक कर लिया, उहदे नाल अटैच हो गया, तो इसनूं असीं अमाइनो असाइल tRNA बोलते हैं, ठीक। नैक्सट उस तो बाद नैक्सट जिहड़ा लूप है दैट इज़ एंटीकोडोन आर्म। ये वाली जिहड़ी आर्म है बच्चे, इसनूं असीं एंटीकोडोन आर्म बोलते हाँ। ये एंटीकोडोन जिहड़ी है जो मैसेंजर RNA अपने 3 बेस इहदे नाल आके मैसेंजर RNA इत्थे मैसेंजर RNA आके इहदे पैरेलल आंदा है। जो मैसेंजर RNA दे जो कोड्स ने 3 बेसिस हैगे ने फॉर 1 कोड। सो मैसेंजर RNA का जिहड़ा कोड है 3 बेसिस फॉर कोड्स, एक अमाइनो एसिड का कोड बनता है,
ठीक है। 3 बेसिस जुड़ के एक अमाइनो एसिड का कोड बनता है। सो ये कॉम्पलीमेंट होंगे ने ऑन द ट्रांसफर RNA। सो मैसेंजर RNA का कोडॉन होंगे एंड और ट्रांसफर RNA का एंटीकोडॉन होंगे। ये आपस च की होंगे ने कॉम्पलीमेंटरी होंगे हैं। सो एंटीकोडॉन है ऑपोजिट होंगे एक्सेप्टर के, 5 बेस पेयर लॉन्ग होंगे और एक ट्रिपलेट नू आइडेंटिफाई करता है, रिकगनाइज करता है कि ट्रिपलेट कोड ऑन द मैसेंजर RNA, ठीक है। और ये दोनों आपस के विच कॉम्पलीमेंटरी होंगे ने। जोड़ा मैसेंजर RNA कोड लैके आया उस दे नाल एंटीकोडॉन कॉम्पलीमेंटरी मैच होया और स्पैसीफिक अमाइनो एसिड ट्रांसफर RNA जोड़ा है वो पिक कर लेंदा है। उस तो बाद जी थर्ड आर्म है उसनू असी DHU आर्म बोलते हैं। बच्चे लेट्स गो टू द डायग्राम अगेन। ये जी आर्म है इसनू असी D आर्म बोलते हैं। ये ऑपोजिट जी है T आर्म है और इत्थे साडी है एक्स्ट्रा आर्म। सो डी आर्म जो की करती है 3 और 4 बेसिस लॉन्ग होंगी है, इन्ने शॉर्ट साइज़ की है और ये एक रिकगनाइजेशन साइट है। इत्थे एंजाइम जोड़ा है वो आके बाइंड करता है। इट इज़ द साइट फॉर बाइंडिंग एंजाइम। सो अमाइनो एसिड सिंथेसेस एंजाइम है जो इत्थे बाइंड करेगा विच एड्स अमाइनो एसिड टू द एक्सेप्टर आर्म। जो एक्सेप्टर आर्म ते अमाइनो एसिड्स आके बाइंड हो रहे हैं। सो जोड़ा एंजाइम है जो इस प्रोसैस नू हेल्प करता है वो कित्थे बाइंड होएगा DHU आर्म ते। उसके ऑपोजिट आप T आर्म बनाई सी। सो इस दे कोल जिहड़ी T आर्म है ये बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफर RNA नू राइबोसोम्स के नाल अटैच करन च हेल्प करती है क्योंकि राइबोसोम्स एक्चुअली प्रोटीन फैक्टरीज ने जिथे प्रोटीन्स जिहड़े ने वो बनते हैं। सो बच्चे ये टर्शरी स्ट्रक्चर है, L शेप स्ट्रक्चर तुसी देख रहे हो। L शेप स्ट्रक्चर है जो फर्दर फोल्डिंग हो जाता है तो उस दे नाल क्लोवर लीफ जी है फर्दर फोल्ड हो जाती है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। T और D आर्म्स जोड़े ने अंदर नू फोल्ड हो जाते हैं, उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो इस तरह का एक L शेप स्ट्रक्चर बनता है। इसनू असी टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर RNA बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ RNA इज़ द राइबोसोमल RNA। राइबोसोमल RNA जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है राइबोसोम्स का। राइबोसोम्स जिहड़े ने दे आर मेड फ्रॉम राइबोसोमल RNA एंड प्रोटीन्स। सो राइबोसोम्स जिहड़े RNA हैं उहदे कोल यूकैरियोट्स दे विच उहदे कोल डिफरेंट RNA मॉलिक्यूल्स हुंदे ने डिफरेंट साइजेस दे 18S 5.8S 28S, ठीक है। और राइबोसोम साइटोप्लाज्म की होंदा है राइबोसोमल RNA और प्रोटीन्स आपस में कंबाइंड होंदे हैं एंड दे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। सो राइबोसोम बाइंड्स टू मैसेंजर RNA। राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस होंदा है तो राइबोसोम मैसेंजर RNA दे नाल बाइंड करते हैं और मेन जो सारा प्रोसैस है वो राइबोसोम दे आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। एक मैसेंजर RNA दे नाल बहुत सारे राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच कर सकते हैं। नियरली ऑल द RNAs फाउंड इन द टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज राइबोसोमल RNA। सो राइबोसोमल RNA जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सब तो पहली गल कि वो राइबोसोम नू बनाने च हेल्प कर रहा है। राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन फैक्टरीज हैं उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की है राइबोसोमल RNAs, राइट। नाउ राइबोसोमल RNA का जिहड़ा फंक्शन है और एक तो वो राइबोसोम की फॉर्मेशन हेल्प कर रहा है, दूसरा रीसेंट स्टडीज़ ने यह शो किया है कि राइबोसोमल RNA एक एंजाइम का भी रोल प्ले कर रहा है, राइबोजाइम, ठीक है। सो वो एंजाइम जो है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हेल्प करता है जो प्रोटीन्स बनते हैं। सो ये जो राइबोसोमल RNA है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट। सो रिसेंट स्टडीज़ दे हैव सजेस्टेड कि दिस राइबोसोमल RNA इज ऑल्सो एक्टिंग एज एन एंजाइम एंड इट इज़ नोन एज राइबोजाइम, right students? So that's all students. I hope all the three types of RNAs are clear to you. Here are the figures showing you two types of genetic material, RNA and DNA. DNA is double stranded, RNA is single stranded. First difference. Second, you can see the bases. In RNA it is uracil and in DNA it is thymine. Double stranded है और single stranded है, bases the different है. Let's study some more differences between the DNA and the RNA before we conclude this lecture. DNA बच्चे we have already studied that DNA is present in the nucleus. Small amount of DNA is also present in mitochondria and chloroplast, whereas the RNA is present in the cytoplasm. Small amount है RNA का जो कि न्यूक्लियस के विच मिलता है, that is messenger RNA जो कि न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्राइब होता है from DNA. Then DNA जो है DNA की क्वांटिटी जो है हर सेल के विच कॉन्सटेंट रहता है, RNA की जो है वो वेरीज करती है। DNA को डीऑक्सी राइबोस शुगर है, RNA को राइबोस शुगर है, राइट।
DNA ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਰੀਮੀਡੀਨਸ ਨੇ ਐਡੀਨਿਨ ਔਰ ਥਾਇਮਿਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਨ ਪਲੇਸ ਆਫ ਥਾਇਮਿਨ ਯੂ ਹੈਵ ਯੂਰਾਸਿਲਸ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਡੀਨਿਨ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰਗਫ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਡੀਨਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਾਇਮਿਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਾइटोसिन हमेशा गुआनिन के बराबर होएगा, इक्वल होंदा है। बट एडेनिन और यूरासिल्स जो हैं वो इक्वल अमाउंट नहीं होंगे इन केस ऑफ RNA, नॉर द साइटोसिन एंड द गुआनिन। नैसेसरी नहीं है कि वो हमेशा इक्वल अमाउंट के विच ही होंगे। DNA रेप्लीकेट करता है, अपनी कॉपीज़ बनाता है, तो RNA जो है इट कैन नॉट रेप्लीकेट इटसेल्फ, सो इट इज़ फॉर्म बाय DNA। तो DNA तो RNA जो है वो बनता है। सो these are the major differences between the two types of genetic material, that is DNA, which is deoxyribose nucleic acid, and RNA, which is ribose nucleic acid. So that's all students, thank you so much। I hope आज थानू RNA the structure, different type of RNA and the main differences between the two type of genetic material, that is DNA and RNA, थानू बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ये टॉपिक थानू क्लियर हो गया। Thank you so much, thanks for watching students, have a nice day।